everyone. Today we will discussing with the GST, and now also we starting with the GST series. In this series we will videos take on the basis of section of the GST law. So in this video we will covering the section wise videos, so you can better understanding of the concept. And these videos can also refers to CS inter student and CMA inter student as well as CS executive students. So in this video we will discussing we will studying the GST and with this institute modules, whether the ICI or whether the ICMAI or the ICIS. So first of all we will studying with the these sections which are common in this CA and CMA as well, and also the CS. So in these sections are studying with this ICI modules, and any other section which is not covered in the CA modules we will discussing with the CMA modules, and also for the CS as well. Now we will starting with the GST. First we will discussing the disclaimer is that कि this is videos is law of जो GST is 30/4/2021, मतलब जो भी आपका लॉ था 30/4/2021 तक का GST का अपडेट जो भी करे गए थे वहाँ तक आपका डिस्कशन करा गया है. If you videos was the later, then you first of all check your any update which is coming from the departments, so you can refer these amendments, so you can update yourself. So now as per my study model, I am only cover the updates only 30/4/2021. So let's get started without any wasting of time. So as you know about the GST, I can assume that you are know about the basic concept of GST. So I am directly put to the section wise and exam related study which is helping your in your exam. So we will discussing in this video from the section 7. In this video we will covering the section 7 in these whole videos and very in crisp manner. Section 7 is very important because GST is levied on the basis of supply. So section 7 is deals about the what is the supply and what is the scope of supply. Now so let us discuss the in this phase only the refers overview and all the definitions as well. So you can directly jump to the page number 2.8 and start reading. As you know, इसमें लिखा है कि keystone of the GST architecture is supply. Okay, supply is the main fundamental of the GST because the GST is levied on the basis of supply, as the income tax is levied on the basis of income. So simultaneously GST is based on the leviable on the basis of supply. So section 7 started with this series. Section 7 deals with the meaning and scope of GST. जो भी आपका GST में सप्लाई का ये कह रहा है सेक्शन 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई. अभी यहाँ से ये डिस्कस करते हैं. आने वाली सेक्शन नंबर 8 है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कसिंग द सेक्शन 7, देन आफ्टर वी विल डिस्कसिंग द सेक्शन 8. इन सेक्शन 7 वी ऑल्सो द डिस्कसिंग विद schedule 1, 2 and 3, and these schedule also with this section 7. And now we will starting first of all with the section 7. So the section 7 talks about जितनी भी आपकी सप्लाई है, all the supply, all form of supply, गुड्स हो या सर्विस हो या बोथ हो. या तो आपका सेल कर रहे हो, सेल डायरेक्टली आप आपने पे करा और वहाँ से आपको कोई भी वस्तु मिल गई, आपने कुछ भी खरीद लिया, आपने पेमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड द सेल. What is the transfer? Transfer means suppose there your factory and you production in the factory, and also the after the production finished goods you send to the your go down, so that is called as the transfer. So the transfer is also covered in the supply. And the barter, what is the barter? Barter means suppose that if you want to some goods but you don't pay any cash amount or anything, you want to in goods, you exchange your goods with the exchange of goods.
जैसा समझ लीजिए, अगर आपके पास एक गुड्स है, आपको कुछ और गुड्स चाहिए जो आपके पास नहीं है, बट आप जिससे एक्सचेंज कर रहे हैं, आप अपनी गुड्स को उसको दे रहे हैं, वो आपको अपनी गुड्स दे रहे हैं, मतलब आपका गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, इसके बुक में एग्जांपल दे रखा है कि जैसे मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर सैलून पर जाता है तो वहाँ पर अपने हेयर कटिंग कराता है, और जैसे ही अगर सैलून वाला अगर डॉक्टर के पास जाता है तो अपनी मेडिकल सर्विस देता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की सर्विस के बेसिस पर एक दूसरे के जो सर्विस दे रहे हैं, पर यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया जा रहा इन द फॉर्म ऑफ कैश या एन, तो दिस इज काइंड ऑफ इन, सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं इज अ बार्टर सिस्टम एंड द एक्सचेंज एज वेल। व्हाट डू मीन एक्सचेंज? एक्सचेंज सपोज दैट कि आपका मोबाइल पुराना था, मान लो ख़राब हो गया, ख़राब नहीं मतलब आप चाह रहे हैं कि मैं नया मोबाइल लूँगा, आप ऑलरेडी पुराना मोबाइल चला रहे हो, तो आपने मार्केट गए, आपने बोला कि मुझे नया मोबाइल दे दीजिए, वो बोल रहा है कि आप पुराना मोबाइल मुझे दे सकते, बोला पुराना मोबाइल देकर भी आप नया मोबाइल ले सकते हैं, बट आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो आपने पुराना मोबाइल दिया और आपने कुछ पैसे दिए, आपको नया मोबाइल मिल गया। तो ये होता है आपका एक्सचेंज केस में। फिर आपका लाइसेंस, जैसे मान लो कि लाइसेंस अगर आपको गवर्नमेंट काफ़ी लाइसेंस देती है तो उन पे भी आपका जीएसटी लगता है, बट एक लाइसेंस का एक्सेप्शन केस है, वो मैं आपको आने वाले डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल आपका लाइसेंस भी इसमें कवर है। रेंटल से मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी, वेदर चाहे आपने कॉमर्शियल, वेदर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या आपकी कोई ऐसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, अगर आपने कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए उसको रेंटल पे दिया है तो आपका जीएसटी में कवर होगा, अदरवाइज आपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दिया है तो आपका इसमें कवर नहीं होगा। मतलब अगर आपने कोई बिल्डिंग है, आपने किसी को रहने के लिए दे दी, मतलब वो खुद रह रहा है वहाँ पे, अपना मतलब फैमिली से रह रहा है, तो वो आपका जीएसटी में कवर नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर आपने अपनी बिल्डिंग को जिसमें आप रह रहे थे, आपने किसी पर्सन को उठा दिया जिसमें उसने वो अपना ऑफिस खोल लिया या अपना गोडाउन बना लिया, तो वो आपका जीएसटी चार्जेबल हो जाएगा। देन फिर आपका लीज। व्हाट डू मीन टू से लीज? लीज क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई भी लैंड है या आपने कोई भी लैंड आपने लीज पे दे दी, तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पीरियड में आपको एक प्रीमियम मिलता है, तो वहाँ पर भी आपका जीएसटी कवर हो जाता है। देन फिर आपका नेक्स्ट है कि जैसे अभी इसमें एक और है डिस्पोजल। तो डिस्पोजल का मतलब होता है कि अगर आपने पुरानी एसेट्स आपकी ख़राब हो गई बिजनेस की, तो आपने उसको बेच दिया, कबाड़ में कुछ भी हुआ, तो डिस्पोजल हो गया। तो यहाँ पे डिस्पोजल भी आपका जीएसटी की डेफिनेशन की सप्लाई में कवर है। तो अब ये हो रहा है, जितना भी आपने सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल आपने पढ़ा, ये सब आपका कंसीडरेशन पे होना चाहिए, मतलब इसके बदले कंसीडरेशन कुछ होना चाहिए, वेदर इन काइंड और एक्सेट्रा। और कौन करेगा? बाय एक पर्सन के थ्रू, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका सेल जो भी आपका हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लीज हो रहा है, रेंटल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है या आपका डिस्पोजल हो रहा है, एक तो कंसीडरेशन के साथ होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब आपने अपने बिजनेस में करा है। सपोज मैं तो अभी आप स्टूडेंट हो, तो आप अगर मान लो कि कोई भी अगर आप बेचोगे, ठीक है, आपने अपनी कुछ गुड्स बेच दी, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आप बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहे, तो इस केस में तो यहाँ पे आप ना बिजनेस के लिए होना चाहिए। अगर आपके पापा आपकी दुकान है तो अगर कुछ चीज़ बेचेंगे तो वो बिजनेस के लिए है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी आपने देखा कि कंसीडरेशन भी होना चाहिए और आपके बिजनेस के लिए भी होना चाहिए, बट लेकिन जो सबसेक्शन 2 सब क्लॉज जो बेसिकली दे रखा है 2, इसमें क्लॉज जो आपको बी में दे रखा है कि अभी तो आपने बोला कि कंसीडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बट इम्पोर्ट ऑफ सर्विस जब आप इंडिया के बाहर से करोगे तो उसमें कंसीडरेशन तो होगा, बट अगर आप इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करते तो भी आपका सप्लाई में कवर हो जाएगा। ये होता है, मतलब इसका ऊपर वाले का कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ा सा करता है। फिर आता है क्लॉज सी, जिसमें क्या लिखा है कि मैंने आपसे बोला था कि इसमें 3 शेड्यूल पढ़ने वाले हैं, तो वही शेड्यूल के बारे में तीसरा क्लॉज बोलता है कि जो भी एक्टिविटीज शेड्यूल फर्स्ट में आपको दे रखी हैं वो मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट ए कंसीडरेशन, मतलब जो ऊपर वाले में क्या था, कंसीडरेशन था, पर लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। सब क्लॉज सी में क्या दे रखा है कि जो शेड्यूल फर्स्ट में जितने भी ट्रांजैक्शन बताए गए हैं, अगर वो विदाउट कंसीडरेशन भी होते हैं तो भी आपका सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो जब शेड्यूल फर्स्ट जब आएगा तो उसको देखेंगे, बट अभी फिलहाल हम सेक्शन 7 का पढ़ रहे हैं।
फिर आपका 7(1)(a). 7(1)(a) कुछ नहीं कहता, 7(1) ये कहता है कि जो भी आपको ऊपर अभी आपने पढ़ा था कि जो भी आपने पढ़ा था कि सेल पढ़ा था, ट्रांसफर पढ़ा था, बार्टर पढ़ा था, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब जो है वो आपका बेसिकली जो शेड्यूल 2 में, अभी देखो शेड्यूल फर्स्ट आपने देख लिया कि उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो विदाउट कंसीडरेशन सप्लाई के बोली जाएंगी या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगी। अब शेड्यूल 2 में क्या होगा, शेड्यूल 2 में वो सारे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं कि जैसे आपने बोला कि आपके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, बट लेकिन जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग वो कहेगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो ऐसे तो जो भी आपके सेल, डिस्पोजल, लीज, रेंटल, एक्सचेंज, बार्टर, ये सारे किसके रेफरेंस पे होंगे, ये आपके शेड्यूल 2 के होंगे। शेड्यूल 2 को आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस दे रखी है, क्या चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स दे रखी है। जब शेड्यूल 2 आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा। देन फिर आपका आता है सबसेक्शन 2। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 इस ये कॉन्ट्राडिक्शन सेक्शन है जिसमें बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अभी आपने शेड्यूल फर्स्ट देखा जिसमें विदाउट कंसीडरेशन के भी आपका सप्लाई में कवर हो रहा था ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 2 में आपने देखा कि कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ठीक है। अब एक शेड्यूल थर्ड है जिसमें लिखा है कि कौन सा, बोला कि कोई सा जो भी शेड्यूल थर्ड में आपका ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो आपके सप्लाई नहीं माने जाएंगे, वो सप्लाई की डेफिनेशन नहीं आएंगे, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। और सब क्लॉज बी में दे रखा है, सेक्शन 2 क्लॉज बी में दे रखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या सप्लाई करती है जो कि पब्लिक अथॉरिटी, व्हाट यू मीन पब्लिक अथॉरिटी, जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हमारे लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे वो कूड़ा ले जाता है या और भी बहुत सारे काम करते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जीएसटी की डेफिनेशन में कवर नहीं होती हैं। अगर गवर्नमेंट हमें कोई सर्विस देती है तो अब सबसेक्शन 3 में क्या दे रखा है, जैसे कि आपने सबसेक्शन 2 पढ़ा जिसमें आपने बोला कि शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज़ आपकी कोई भी आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर आपने सब क्लॉज बी देखा। सब क्लॉज बी में आपने देखा कि गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर कोई ट्रांजेक्शन और कोई एनी एक्टिविटीज़ करती है जो वो आपका पब्लिक अथॉरिटी के लिए होगा तो वो आपका जीएसटी की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो वो ये बोल रहा है कि notwithstanding anything contained subsection 1 shall be treated as neither supply of goods nor supply of services. So subsection 3 talks about कि जो भी आपका सबसेक्शन 1 में आपने देखा था एंड आपका subsection 1A that is and subsection 2 that is, and the government may on the recommendation of the GST Council specify by the notification the transaction that are to be treated as a supply of goods not a supply of services, a supply of services not a supply of goods। मतलब देखिए अगर क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल क्या होता है, रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन निकालता है और वो अपने नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी चीज़ को सप्लाई की डेफिनेशन से जो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर कर रखी है वो सप्लाई ऑफ सर्विस में भी ला सकता है, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स में कवर कर रखी है वो सप्लाई सर्विस में भी ला सकता है। तो ये आपका इतना बोलता है। तो आपने देखा कि सबसेक्शन 1 में दे रखा था कि आपको सेल, लीज, रेंटर, वाटर, एक्सचेंज और डिस्पोजल ये सब आपका सप्लाई माना जाएगा अगर ये कंसीडरेशन के साथ होते हैं और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होते हैं। और क्लॉज बी में दे रखा था कि अगर आप इंडिया के बाहर से कुछ सर्विस इंपोर्ट करते हैं, आप कंसीडरेशन पे करते हैं, आप इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करें या ना करें, अपने बिजनेस के लिए लें या ना लें, तो भी आपका जीएसटी लगेगा ही लगेगा। सब क्लॉज 3 में दे रखा था कि जो भी शेड्यूल फर्स्ट में जो भी आपके ट्रांजेक्शन दे रखे हैं वो सभी जीएसटी की डेफिनेशन में जीएसटी लग जाएगा उन पर, अगर विदाउट कंसीडरेशन करे गए हैं तो भी। वैसे एक नेसेसरी कंडीशन थी कि इन द कंसीडरेशन में हो और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, बट लेकिन शेड्यूल फर्स्ट में विदाउट कंसीडरेशन भी आपकी सप्लाई की में कवर हो जाएगा। 1A में कुछ नहीं कि जो भी आपका ऊपर दे रखा है वो आपके शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल 2 में वो वाली एक्टिविटी दे रखी है कि सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ गुड्स वो माना जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विस को माने सप्लाई ऑफ गुड्स, वो आपको स्पेसिफाई कर रखी है कुछ ट्रांजेक्शन, वो आपको उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल 2 के अंदर फॉलो करना है, वही आपको बताता है।
फिर आपका 2 में क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन है जिसमें शेड्यूल 3 की एक्टिविटी सब जीएसटी नहीं लगेगा। और पब्लिक अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, अगर आपका कुछ पब्लिक अथॉरिटी के लिए कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो उन पर भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा। और सब सेक्शन 3 में दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल के नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी सप्लाई गुड्स को सर्विस बना सकती है, सप्लाई सर्विस को सप्लाई गुड्स बना सकती है। सो इतना ही था। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में जो कि हम सेक्शन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम तीनों शेड्यूल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार खुद से पढ़िए। एंड कोई भी क्वेरीज है कमेंट में डालिए, पूछ सकते हैं आप। मैं इजीली आपका आंसर डेफिनेटली आंसर करूँगा। एंड मिलते रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। देखिए मैं तो एक प्रयास कर रहा हूँ कि लोग कैसे भी करके किसी का मतलब कहते नहीं कोई स्टडी में कोई बाधा ना आए, बस आप पढ़ते रहें। बस कहते हैं कि एक पढ़ जाता है ना घर में अगर कोई एक बंदा पढ़ जाता है, मतलब एक बच्चा पढ़ जाता है, तो वो कई पीढ़ियों को सुधार देता है। तो एक पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम पर। तो पढ़ाई किसी भी कारण से रुकनी नहीं चाहिए, ना पैसे, जैसे अगर किसी के पास इतने अफोर्डेबल प्राइस पे नहीं है कि वो मतलब क्लासेस को ले सकें, तो ऐसा नहीं है कि वो तो मैं बस यूट्यूब के माध्यम से अपना एक कंट्रीब्यूशन करने चाह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से आपको आपको थोड़ी सी सहायता मिले। बस मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आने वाली वीडियोस और अच्छे से बनाऊंगा, और बेहतर तरीके से आपका रिस्पॉन्स अगर आप मुझे दोगे तो मैं और ज़्यादा उसको अपने ऊपर समझूंगा कि हाँ चलो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ कमेंट, जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है बताइए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड सी इन कमेंट।